Hello, my dear kids. Good morning, everybody. This is Chetan sir. So the chapter name is Motion in a Plane, which is new chapter, and this is lecture number 1. So the number of the chapter is 4, where this physics is belonging to class 11 NCERT physics. Fine. And today's concept is Introduction 4.1, and this is my version of physics beta series. And my channel's name is Physics Indian Professor. So I'm starting with the introduction. So I'm going to keep numerous physical quantities from the last chapter, which is motion in a straight line. Okay. So that is displacement, velocity, okay, as well as force, acceleration. Whenever these things takes place in a straight line, ठीक है, ये सारे चीजें जब straight line में आती हैं, we used to call that we are defining the direction of these quantities. ठीक है, direction of these quantities. So when you're taking a representation of the direction of these quantities, you need to have a plane. तो आपको एक प्लेन चाहिए जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हो. So that means that you are using two dimensions to represent these quantities. ठीक है, तो आपने एक प्लेन लिया, ठीक है, एक को एक्स एक्सिस बोला, एक को जेड एक्सिस बोला. तो ये एक पेपर है जिसमें आप दिखा रहे हो किसी क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन को. सो यू आर टेलिंग दैट मोशन इज टेकिंग प्लेस इन अ प्लेन. ठीक है, तो यही है इस चैप्टर का जस्ट. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू divide or we are going to distinguish these quantities in terms of magnitude as well as direction. मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन है और आप उसको क्या करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल force is equals to mass into acceleration. So this is an equation, एक equation है physics का. And what you're doing or you're applying force over this small dot body, or else इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. Here is the body, ठीक है, and over this body, over this over this body, you are applying force over this point with a point of application. ठीक है, so it means that you're showing the direction of force. So if you're applying force in the same direction, acceleration will be going to takes place. ठीक है, in the same direction the acceleration will be going to takes place. See here, ये इक्वेशन जो है ना, हमने इसको बहुत ही छोटे तरीके में दिखा दिया. by using what? by using an arrow mark. by using an arrow mark we are representing a quantity. एक क्वांटिटी को, या ये फोर्स हो सकता है या एक्सेलरेशन हो सकता है, और एल्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल इक्वेशन बाय यूजिंग दैट मार्क, एरो मार्क. ठीक है, तो इस एरो मार्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं पता है बच्चों? सो दिस force, if it is 20 newton of force, so with this arrow mark we are showing the direction of application, and with this value we are showing the magnitude. क्या दिखा रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में क्या होता है? एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट, एसआई यूनिट, है ना? तो देखो यहाँ पे 20 क्या है? 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है. एन क्या है? एसआई यूनिट है. क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? मींस with this arrow mark and with this symbol F, we are showing out the magnitude as well as direction. तो इसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, particularly to this representation. Yeah, what type of representation we are going to show with the magnitude as well as direction. ठीक है, तो हम एक मैग्नीट्यूड से दिखाएंगे, मतलब एक वैल्यू से दिखाएंगे, दूसरा डायरेक्शन से दिखाएंगे. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इनएक्टिंग, है ना? तो आपने बोला F इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ये 20 और न्यूटन क्या हो गया? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया. मतलब अगर ये वाला दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. we are showing the magnitude of the force. Now if they ask to show the direction of force, तो direction of force अगर आप ऐसे दिखा रहे हो, so this will be positive force. क्या है ये? आपका positive force है. मतलब the force is acting in the
x direction. Now say for example another force I'm going to take simply to show here in the diagram. यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लूंगा एंड आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 30. मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि इससे इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा इतना दिखा पा रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, सिंपली टू डिपिक्ट दैट कि वैल्यू ज्यादा है भाई. ओके, सो ये 30 है एंड दिस इज माइनस साइन. सो वेक्टर एफ, वेक्टर ऊपर अगर यही एरो मार्क को छोटा बना के उस क्वांटिटी के ऊपर हेड के ऊपर रख दिया जाए, सो दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. मतलब दैट वेक्टर क्वांटिटी विल बी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन किससे दिखा रहे हैं? माइनस से दिखा रहे हैं. इट मींस अपोजिट टू द अर्ली फोर्स, है ना. तो टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस 30 न्यूटन. कितना हुआ? माइनस 10 न्यूटन. दिस इज द रिजल्टेंट, है ना. सो लाइक दिस लाइकवाइज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी. ये तो चीज पता चल गया. बेसिक बेसिक मैंने मोटा मोटा चीज बता दी आपको कि कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस नाउ. मतलब पिक्चर का जिस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पिक्चर की स्टोरी कौन से चीज पे बेस्ड है. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज नाउ. ओके, सो नाउ दो तरह के क्वांटिटीज रहते हैं बेसिकली व्हेनेवर यू यूज्ड टू पुट अ टर्म कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, कोई भी आप ऐसे जब डालते हो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, दिस टर्म वी लर्नड इनटू चैप्टर 2. ये जो टर्म है ना हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था. ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं? इट विल बी डिवाइडेड इनटू मेजरली टू, स्केलर एंड वेक्टर. So for PUC, you peoples learn these two types of distinguish. Third type of distinguish अलग है, वो है आपका टेंसर. ठीक है, स्केलर is a quantity, vector is a quantity, tensor is also a quantity. अभी एक चीज मैं बताता हूं बच्चों आपको. So when I say mass is equals to 2 kg, तो mass is equals to 2 kg बोलने के बाद tell me by what direction you are going to show the mass. कि मास 2 kg ही है ऐसा बताने के लिए कौन सा डायरेक्शन बताओगे? टेल मी, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मास व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्शन यू आर गोइंग टू यूज. क्या आप ऐसे बताओगे मास 2 kg है, या मास ऐसे बताओगे, या मास ऐसे बताओगे, या मास ऐसे बताओगे, और एल्स लाइक दिस? कौन से डायरेक्शन में बताओगे? मास विल नॉट बी हैविंग एनी डायरेक्शन. मास का शेप ऐसे हो सकता है, मास का शेप ऐसे हो सकता है, मास का शेप ऐसे हो सकता है, or else like this, or else like apple. Okay, or else like live. ठीक है, मास 2 kg का मेटल का लिव बना दिया तो मास. So it will be not having any direction. So the quantities which do not have direction but has magnitude. Magnitude means 2 numerical value kg SI unit. सर सिर्फ एसआई यूनिट ही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है? से फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर यू आर राइटिंग, लेंथ इज देयर. सो 20 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है. सेंटीमीटर इज सीजीएस यूनिट. सो दिस इज आल्सो व्हाट? दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गई? उसके लिए डेफिनेशन लिखाना पड़ेगा. मैंने तो आपको डेफिनेशन पहले ही बोल दिया. No need of writing definition. You can simply listen my words. There are the physical quantities which do not have any direction is called as scalar quantity. ठीक है ना? चलो ये तो हो गया. अभी स्केलर क्वांटिटीज के लिए एग्जांपल सिर्फ मैंने मास बता दिया और लेंथ बता दिया. आप थोड़े बताओ, क्या टाइम स्केलर क्वांटिटी है? क्या टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है? क्या एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है? क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है? क्या या क्या स्पीड स्केलर क्वांटिटी है?
which one you are saying, Zainul? From your side it is having problem. No one is, I think, having problem with the connection. Do my sound is cutting, my dear kids? For other ones, Zainul is having complication with the sound. No, Zainul, you have to reconnect, that's it. थोड़ा सा बाहर आके आप बैठिए कहीं पे ओपन स्पेस में. अगर आप किसी कॉर्नर में बैठे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन वेवलेंथ कम होता है. तो वेवलेंथ कम होने की वजह से बेंड कम होता है ना? ओके, वॉइस इज क्लियर. मुहाफिज, थैंक यू. जैनुल, आप थोड़ा सा ओपन स्पेस में आके बैठिएगा, ठीक है? सो इज दैट क्लियर विद द स्केलर क्वांटिटी, माय डियर किड्स? चलो, स्केलर क्वांटिटी तो क्लियर हो गई. डेंसिटी, टाइम, चलो अच्छी बात है. समीर कुलकर्णी, गुड. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ टेल मी, इलेक्ट्रिक करंट, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? सुमित, व्हाई नॉट? क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है? मुझे बताओ, स्केलर क्वांटिटी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है? नहीं होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन. समीर कुलकर्णी, इज दैट हैविंग डायरेक्शन? नो, it's a scalar quantity. Keep it in mind. Electric current will be always scalar quantity. So don't get confused. आपको सेकेंड ईयर में पता चल जाएगा जैसे ही आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर को मेरे सुनोगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड क्लास 12 क्लासेस ऑल्सो. जिस किसको भी इंटरेस्ट है वो भी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है? Now, scalar quantity is over. Now we are going to go with the vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में, ठीक है? With the vector quantity you will be having magnitude as well as direction, my dear kids. ठीक है? क्या रहता है? मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन भी होता है. Means these are the physical quantities which has not only magnitude but also direction. ठीक है? तो इसके लिए कोई आपको एग्जांपल देना पड़े तो बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी. वेलोसिटी, ठीक है? 2 मीटर पर सेकेंड a vehicle is traveling. 2 meter per second, 2 meter per second, 5 meter per second, 10 meter per second. यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो गया ना. मैं आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक साथ क्यों बताया पता है? बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? सी, अप टू हियर यहां तक सीधा ही जा रहा है, आगे भी सीधा ही जा रहा है. सो डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर लिया और बोल दिया कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में व्हीकल इज मूविंग. ओके, वेरी गुड रक्षिता, परी. ओके, सो लिसन माय डियर किड्स, यहाँ पे मैं एक कन्वेंशन डालूंगा, ठीक है? सो दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. से फॉर एग्जांपल दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे है व्हीकल, तो यहाँ से आगे मूव कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, देन इट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन. मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीकल, ठीक है? तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टवर्ड, है ना? तो ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो इसमें क्या पता चल रहा है? 2 is nothing but numerical value. मीटर पर सेकेंड is nothing but SI unit. यहाँ पे क्या है? 10 is the numerical value. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अभी ये क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज SI unit, ठीक? सो वन इज शोइंग मैग्नीट्यूड, क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिला के क्या बनता है? मैग्नीट्यूड. एंड अबाउट डायरेक्शन वी आर शोइंग विद एरो मार्क, है ना? तो एक्सेलरेशन का एरो मार्क है. सो वी आर शोइंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन.
तो हम लोग किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग द व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? द क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, है ना? सो मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई बच्चों? Okay, clear. So this is very much clear, right? Okay, understood. Mohafiz, Sumit, Umesh. Okay, Vaibhavi Pawar, Priyanka Rathod, Srishti Nandyal, Priyanka, Santoshi Hiremat, Adarsh K. Thank you. So listen up, my dear kids. दो quantities हो गए. Now we are going to come to tensor quantity. ये tensor quantity क्या है? These are the physical quantities. Okay, Vaishnavi, Vijay Benar. Fine, thank you. So these are the physical quantities. कौन से? Tensor वाले quantities, which neither having particular direction. मतलब for example, so tensor quantity, it will be not having specific direction. एक particular direction नहीं रहेगा इसका, ठीक है? Like this. एक सेकंड में अगर ऐसा है तो नेक्स्ट सेकंड में ऐसा बनेगा इसका डायरेक्शन, ठीक है? तो फिर तीसरे सेकंड में ऐसा बनेगा. So what it means? So the direction will be going to change arbitrarily by these quantities on its own. तो इस तरह के क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर्स कहते हैं. मेरी बात आपको समझ में आई? एक समझो, ये रॉकेट है. दिस इज योर रॉकेट. दिस इज योर रॉकेट. इस रॉकेट को ऊपर पुश देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ. इज दैट राइट? फॉर every action there is equal and opposite reaction. मतलब नीचे जितना धकेलोगे, एक्शन डालोगे, उतना ऊपर जाएगा, ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ. अगर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, if this is Newton's third law and you are showing that with the rocket, आप रॉकेट यूज कर रहे हो, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा पता है बच्चों? if this is rocket and you are giving a push, आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो, ठीक है? so this is pushing is nothing but action of force. So for opposite to this, you'll get the reaction, ठीक है, over the rocket. But what will happen, you know, my dear kids, here यहाँ पे क्या होगा? ये जो डायरेक्शन है ना, ये स्पेसिफिक नहीं रहेगा. So this direction will be going to change its position. ठीक है? कैसे चेंज करेगा? अभी ये ऐसा है ना डायरेक्शन, वेट, ये डायरेक्शन ऐसा है, तो ये डायरेक्शन फट से चेंज हो जाएगा एकदम से. कैसे? ऐसे हो जाएगा. So for this, how you are going to get the direction? अपोजिट इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? Likewise ऐसे. If this is like this, means rocket is pushed in this direction. और रॉकेट का जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था वो कैसा था? ऐसा था, ठीक है ना? लाइक दिस. सो जस्ट बाय पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे पुश करने से, एक्शन ऑफ फोर्स मिलने से, रिएक्शन फोर्स कैसा मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है. सो बाय दीज टू, इफ वी पुट लाइक दिस, सो रिजल्टेंट कैसा आएगा? टेल मी, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्टेंट यू आर गोइंग टू गेट ऑफ दिस रॉकेट? यू आर गोइंग टू गेट द डायरेक्शन ऑफ रॉकेट लाइक दिस. रॉकेट का डायरेक्शन कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा, दोनों के बीच में से समवॉट. मतलब रॉकेट घूम के ऐसा चला जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो द ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉकेट व्हिच विल यूज थ्रस्ट वेक्टोरिंग. अभी वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है डायरेक्शन. वेक्टोरिंग मतलब डायरेक्शनिंग. ये डायरेक्शनिंग क्या होता है?
तो थ्रस्ट को आप डायरेक्शन दो, फॉर एवरी इंस्टेंट यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, तो उस तरह के क्वांटिटी को आप क्या कहते हो? टेंसर कहते हो। These are the physical quantities which will be not having specific direction, but it will be going to show in show its direction in a arbitrary way, in a arbitrary way। क्या कहते हैं? आर्बिट्ररी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? तो आप उसको स्केलर्स भी नहीं कह सकते, वेक्टर्स भी नहीं कह सकते। समझ में आया? सो टेंसर क्वांटिटीज, neither it will be scalar nor it will be vectors, but you know such type of quantities will be having, you know uh, it will be not having specific direction but arbitrary direction, ये कह सकते हो आप। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? इट विल बी थ्रस्ट वेक्टोरिंग। सो दिस इज योर एग्जांपल। ओके, फाइन। नाउ माय डियर किड्स, डेफिनेशन लिखते बैठेंगे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो वट एवर आई विल पुट द रिकॉर्डिंग, यू टेक, यू नोट दोज डेफिनेशन माय डियर किड्स। ठीक है? तो आप नोट करिए वो डेफिनेशंस, जो भी मैं मुंह से बोलूंगा अब से मैं डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा इन पे। वो लिखने से क्या हो रहा है पता है? द थिंग्स आर, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा लेकिन डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा। इट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। इफ यू मेक नोट्स फ्रॉम वट एवर आई एम स्पीकिंग, मैं जो भी बोल रहा हूं उससे आप अगर नोट्स बनाओगे बहुत ही आपको बेहतर होगा। ठीक है? अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हो तो बाद में तो देख सकते हो। whenever you'll get the time you can make the notes from those। ठीक है? ओके बाय। सो ओके, सी हियर, सो वी आर गोइंग टू लिव टेंसर क्वांटिटी। तो सिर्फ स्केलर और वेक्टर पे फोकस करते हैं। ठीक है? बिकॉज थ्रू आउट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ओवर स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना? चलो, सो बच्चों, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द स्केलर। तो स्केलर के लिए स्पेसिफाई कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है? 20 मीटर। सो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल वेक्टर a is equals to 20 meter per second square. Now see here, this is your magnitude, this is your magnitude, and this is also magnitude। तो मैग्नीट्यूड यहां पे कौन सा है? a is equals to 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो ऊपर वाला एरो मार्क है ना, ये आपको एरो मार्क दिख रहा है। सो दिस इज शोइंग डायरेक्शन, दिस इज शोइंग डायरेक्शन। ओके, सो नाउ यू केम टू नो कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या। ओके, अरे बाप रे। सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पेसिफिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। चलो, सो पॉजिटिव डायरेक्शन किसको कहते हैं पता है आपको बच्चों? whenever you used to write plus 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एल्स सिंपली बिना प्लस के आप ऐसे भी लिखते हो, तो उसका भी मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है? सेम दिस वन। सो दीज टू आर पॉजिटिव क्वांटिटीज ओनली, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज ही हैं। फाइन, ओके, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का। देखो, स्केलर मैंने इधर लिख लिया और एक जगह वेक्टर लिख लिया। ठीक है? तो स्केलर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
मास और वेक्टर के लिए लूंगा वेट। सो नाउ टेल मी कि इसको इलेबोरेट कैसे कर सकते हैं। So I have chosen two examples. One is for scalar quantity and the one is for vector quantity. So how we can elaborate this one? So at the prima facie, मतलब पहले जब देखते हैं तो लगता है कि दोनों को दोनों एक ही हैं, mass as well as weight. So can we bifurcate this? क्या हम लोग इसको bifurcate कर सकते हैं बच्चों? फट से आर बोथ आर सेम और डिफरेंट? दोनों में डिफरेंस है ऐसे लगता है या? सो व्हाट इज मास? इट इज द it is the it is the amount of matter contained in it. मतलब सिंपल भाषा में समझाएं तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी यूज्ड टू कॉल इट एज मास। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। सिंपल भाषा में क्या लिखा है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, और इन अ बॉडी करके लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट इज मास। नाउ टेल मी व्हाट इज वेट? वेट क्या है? या अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, दोनों सेम है समीर। ये वेट क्या है बताओ मुझे। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, से फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट एट अ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेट में डिफाइन करना चाहूं तो कैसे कर पाऊंगा मैं? हाउ कैन आई डिफाइन? सो आई एम गोइंग टू डिफाइन बाय व्हाट मीन्स? फट से बताओ जल्दी से। Basically, you know what, my dear kids, sir, amount of matter in object, force exerted. Okay. So the weight is nothing but, my dear kids, it is basically force. Weight क्या है? Force exerted. Force exerted by the earth on an object and have attraction towards it. ठीक है, इतना है। वेट क्या है? फोर्स exerted by the earth on an object and have attraction by the earth over the body or over that object, okay, towards the center of the earth. चलो, या मतलब it is the effect of gravity, amount of matter gives downward direction. तो ये जो downward direction आपको दिख रहा है ना बच्चों, what this is showing? This is showing, you know what, my dear kids, ये आपको दिखा रहा है कि ये जो arrow mark is nothing but vector quantity. So this is showing direction. And magnitude क्या है? जो भी force का रहेगा magnitude, say for example the force is acting towards the earth is 30 न्यूटन, ठीक है। तो 30 न्यूटन क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट है। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? व्हेन आई टुक एन एग्जांपल ऑफ मास एज वेल एज वेट, तो मैं आपको मैग्नीट्यूड भी दिखाया और डायरेक्शन भी दिखाया। ओके, सो दिस इज ओवर। नाउ if I take a second distinguish, so mass will be constant. मास किसी भी हाइट पे हो, मास किसी भी हाइट पे हो, से फॉर एग्जांपल 1000 एटम्स इस बॉडी के अंदर हैं। कितने हैं? 1000 एटम्स। सो इफ यू कीप दिस बॉडी at either 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ और एल्स 10 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो दोनों हाइट्स पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दिस बॉडी विल बी रिमेनिंग सेम। This is what means, this means that mass will be remaining constant.
तो अमाउंट ऑफ मैटर जो रहेगा प्रेजेंट इनसाइड दैट बॉडी वो सेम रहेगा। लेकिन जो वेट है, वेट से उसमें क्या होगा, वो मतलब वेट माने फोर्स, फोर्स विल बी गोइंग टू वेरी प्लेस टू प्लेस। 10 मीटर पे दिस इज नियरेस्ट डिस्टेंस टू द अर्थ व्हेन इट कंपेयर्ड विद द 1 किलोमीटर। तो 10 मीटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एट 1 किलोमीटर व्हेन द सेम ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड हियर, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, so the force of attraction between the earth as well as this body will be going to get less because of inverse law, inverse square law of distance। तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही घटेगा। so the nature of force is force of attraction belonging to what, belonging to gravitational force। so we are talking about gravitational force, gravitational force exerted by the earth over a body which is kept at a 1 kilometer distance। so the weight of that body, the force of that body will be going to decrease। simple। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। तो इससे हमें दोनों से क्या पता चल गया कि मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में वो तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो इसका डायरेक्ट, so I was discussing that the distinguish in the last diagram of scalar and vector। so scalar will be having magnitude and vector will be having both magnitude and direction, ठीक है। तो वेट में क्या हो गया, हमको मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया, एनी हाउ। एंड मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड। चलो, so listen up my dear kids, one thing I want to mention that how we are going to representation of vector and how we can analyze and use a vector quantity, ठीक है। and what is the importance of vector। तो देखो बच्चों, ये चीज क्यों मेंशन करना पड़ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज यू नो, जब भी हम कोई भी चीज डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली डालना चाहे, so that will be very much easy instead of putting diagrams। अभी समझो, two buses have made collision। तो दो बस कोलिजन कर रहे हैं, एक बस ऐसा डालना पड़ेगा, एक बस ऐसा डालना पड़ेगा, फिर उसके टायर्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसको एक रोड देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, सिंपली just by showing that one bus is coming from this direction west to east, another bus is coming from this direction, okay, ऐसे। तो दो वेक्टर्स मैंने डाल दिए, ठीक है। अभी दो वेक्टर्स मैंने डाल दिए, एक को बोला सो वन बस इज कमिंग विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अनदर बस इज कमिंग विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो देखो, बहुत ही सिंपल है ना तरीका, किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी डायग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। सो वी नीड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो जब हम एरो मार्क यूज करते हैं, सो व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट, इसका यूसेज क्या है, ठीक है, और इसको कैसे बोलना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट हैव टू पुट एनी वैल्यू। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए। so whenever you used to take the direction of vector, you should take from left to right। so this is the convention into physics। physics में ये convention है कि जब भी आप वेक्टर डालो तो ऐसे ही डालो। so you should not use vector like this। आपको ऐसे नहीं डालना है, ओके। ये कब डालना है, ओनली व्हेन दे विल आस्क यू टू डू सो। ऐसे पूछने के बाद कि ऐसे डालो, वो भी कैसे, इसके अपोजिट में, यहाँ पे पैरेलली रख सकते हो, और एल्स ऐसे रख सकते हो, और एल्स यहाँ पे रख सकते हो, इफ दे विल आस्क यू टू डू, ठीक है। ऐसे करने के लिए बोलेंगे तभी डालना है, और एल्स यू नीड टू शो, यू नीड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये एरो मार्क क्या डिपिक्ट करता है, एंड व्हाट दिस पॉइंट डिपिक्ट्स। सो दिस पॉइंट डिपिक्ट्स एज ओरिजिन ऑफ अ क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन ऑफ अ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या इसको कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल, टेल माने पूंछ, ओके। एंड व्हाट दिस एरो मार्क इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स हेड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज हेड। क्लियरली बात समझ में आई बच्चों, दिस एरो मार्क इज कॉल्ड एज हेड।
as well as sometimes it is called as tip. इसको tip भी कहते हैं. So maximum times it is called as head. And yeah, very good. Tail head. ये तो tail to head है vector. समीर कुलकर्णी. Very good. So tail to head, we are showing the direction of the vector. But this method is called as head and tail method. Head and tail method. और head and tail method कहने के बजाय head to tail method. क्या कहते हैं इसको? Head to tail method. This is better way of calling. Sir, what is this, sir? Head to tail method. Head to tail method क्या है? I will tell you afterwards. आगे बढ़ने के बाद बताऊंगा head to tail method क्या होता है. Head to tail method वो होता है बच्चों, whenever you take n number of vectors to find out the resultant vector. तो आपको resultant vector find करने के लिए आपको ये method को use करना पड़ेगा. ठीक है? So उसको कहते हैं head, not tail head, head to tail method. ठीक है? Okay. This is called addition of vectors graphically. Addition of vectors graphically, not by mathematical operations. Mathematical operation वो different होता है. Addition of vectors वो different होता है. But we are adding vectors graphically. By what means? By head to tail method. तो सर आप 3 वेक्टर्स को लीजिएगा, 3 वेक्टर्स को लेके हेड टू टेल मेथड को अप्लाई करके दिखाइएगा. दिस इज 1 वेक्टर. ठीक है? एंड दिस इज another वेक्टर एंड दिस इज द थर्ड वेक्टर. ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? 3 vectors are here. Now what we are going to do here, you know, a concept is there into physics. Whenever you are adding 3 vectors or more than 3 vectors or more than 1 vector, एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो तब अगर ऐड कर रहे हो ग्राफिकली तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना पड़ता है. एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज वेक्टर शिफ्टिंग. क्या कहते हैं बच्चों उसको? वेक्टर शिफ्टिंग. क्या कहते हैं? वेक्टर शिफ्टिंग. why we use this concept? We use this concept simply to show head to tail method. ठीक है? अभी ये वेक्टर शिफ्ट क्या होता है सर? वेक्टर शिफ्ट आप जब भी करते हो तो उसको कैसे करना है? यू नीड टू मेक विथ हेड टू टेल. हेड टू टेल. ठीक है? ऐसे ही आपको वेक्टर शिफ्ट करना है. तो मैंने ये वेक्टर को लिया और दिस इज सेकेंड वेक्टर. ये जो हिल रहा है ना वेक्टर, दिस इज सेकेंड वेक्टर. ठीक है? इसको वेक्टर ए बोलूंगा. ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर बी एंड दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर सी. चलो ठीक है? तो मैं वेक्टर बी को क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू द वेक्टर ए from the tail, from the head of vector A to the tail of vector B. And I'm going to take the vector C. I'm going to shift like this. ठीक है? तो shift कर दिया. क्या मिला हमको? क्या मिला हमको? We got this. Clearly पता चल रहा है बच्चों? कोई confusion इस पे आपको? Where is vector B and where is vector C? So this is vector B and this is vector C. ठीक है? So now what you're going to take? You're going to take the resultant vector. अभी resultant vector क्या दिखाओगे? So the first vectors what? Tail. And second vectors, last vectors head. तो उसको आप जोड़ोगे, उससे क्या मिला आपको? You got this resultant vector. So this is nothing but head to tail method. You added, by that means you got the resultant of 3 vectors. Rakshita, you got that? Priyanka Rathod, tail to head नहीं आता है. Priyanka Rathod. So whenever you are adding, हेड टू टेल ऐड करना है, फिर बाद में जो रिजल्टेंट मिलेगा उससे क्या करना है आपको? टेल टू हेड लेना है. दैट या टेल टू हेड कब लोगे? देखो, जब आप हेड टू टेल कब ले रहे थे? हेड टू टेल यू टुक फॉर 3 वेक्टर्स, ये वाला एंड ये वाला. हेड टू टेल. सो टू गेट द रिजल्टेंट आपने क्या लिया? टेल से हेड को ले लिया.
बात समझ में आई? या दिस इज द वे यू नीड टू टेक इनटू हेड टू टेल मेथड टू गेट द रिजल्टेंट, आपको रिजल्टेंट लेने के लिए। सो ऐसे ऐड करना होता है। कैसे? ग्राफिकली, नॉट मैथमेटिकली। ठीक है? या और वो भी कैसे करके? वेक्टर शिफ्टिंग करके, वेक्टर शिफ्टिंग करके। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स नहीं बताए बच्चों, सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताया है, वेक्टर का मीनिंग बताया है, और स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, ये चीजें बताई हैं मैंने। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर हो या फिर बाद में उसका एप्लीकेशन हो, वो बाद में देखेंगे, बिकॉज यू नो इट विल बी हैविंग लार्जर पर्सपेक्टिव, तो उसके लिए टाइम लगता है। फाइन, सुमित मेडेदार, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? परी, सृष्टि, समीर, अनुष्का गुड़ी, रक्षिता, सृष्टि, वैष्णवी, ओके, लिसन अप। तो ये तो चीजें पता चल गई आपको। मैं और एक थोड़े से एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो द लास्ट वन इज टेल, सो दिस वन इज हेड। ठीक है? say for example this is your vector a and this is your vector b and this is your vector c। ठीक है? तो अभी देखो बच्चों, यू कैनॉट टेक लाइक दिस, या के मैं यहाँ पे आके ये जोड़ूंगा, फिर यहाँ पे आके मैं ये जोड़ूंगा, इधर लाके जोड़ूंगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इफ यू टेक हियर लाइक दिस, if you take like this, so it will be not going to have any means, इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। so by sequence wise you need to take, ओके, सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, और पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कैसे करोगे? इसको थोड़ा साइड हटाइए। सो इफ दिस इज वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को पहले लाके रखिए, देन हेड टू टेल जोड़ लिया, फिर बाद में वेक्टर बी का हेड लो और वेक्टर सी का टेल लो, फिर बाद में टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर is joined with the head of the last vector, so this is your resultant। इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो वेक्टर आपने ऐसा शिफ्ट कर दिया, जिससे हमें क्या मिला? जिससे हमें हेड टू टेल मेथड को समझने का मौका मिला। फाइन, ओके, फाइन, सना सागर, गुड। नाउ अभी ये वेक्टर ए है, ओके, सो दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर ए। आई टेक अनदर वेक्टर माय डियर किड्स, मैं और एक वेक्टर लूंगा जिसको मैं क्या करूंगा? ऑलरेडी ऐसा जोड़ूंगा। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर बी। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर बी, and what will be the resultant of these two vectors? We'll get this one. So this is called triangle law of vector addition। तो जिसमें आप क्या कर रहे हो? वेक्टर r को ले लिया, you took vector r, so by this you can simply put up the algebraic sum of two vectors ऐसे, वेक्टर r is equals to वेक्टर a plus वेक्टर b। So this is the addition of two vectors, दो vectors का हमने addition यहाँ पे देख लिया। Sir, it's just a diagram or we have to solve problems. Problems will come later, Priyanka. So this is graphical representation। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे? Representation of vector। तो अभी representation of vectors कर लिया मैंने, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड कैसे करना है? So दोनों का हेड टू टेल एडिशन करना है, फिर हमें रिजल्टेंट मिलेगा। Now let me write this one, subtraction of two vectors, vector r is equals to vector a plus minus of vector b। Now tell me, अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा? So I have to take what you know my dear kids, मुझे लेना पड़ेगा ये वेक्टर b कौन से डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन में है, तो वेक्टर b का अपोजिट डायरेक्शन मुझे लेना पड़ेगा, लेके मैग्नीट्यूड वाइज अगर इस पे रखूं तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए।
तो अगर ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, इट मींस दैट दिस इज योर माइनस वेक्टर बी। अभी माइनस वेक्टर बी को मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू मेक वेक्टर शिफ्ट। सो वेक्टर शिफ्ट वेयर? हियर। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? सो वेयर विल बी द रिजल्टेंट देन? रिजल्टेंट कौन सा रहेगा इसमें? सो द रिजल्टेंट विल बी this one with the blue color mark I am showing. ठीक है, देखो यहां पे वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ा हुआ है। सो बाय दिस मींस दे हैव एडेड टुगेदर, बट वन इज प्लस वेक्टर, अनदर वन इज नेगेटिव वेक्टर। सो यहां पे क्या मिला? वेक्टर आर डैश मिला। सो आर डैश क्या है? सो दिस इज नथिंग बट द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सो दैट कैन बी रिटन एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सिंपल है। दिस इज ऑल्सो रिजल्टेंट। रक्षिता, वैष्णवी, समीर, प्रियंका, उमेश पी, सना सागर, संतोष सी, सृष्टि नांदियाल, प्रियंका राठौड़, वैभवी, चलो सुमित। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना? सो दिस इज ऑल, यू नो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वी यूज्ड टू सी लाइक दिस। हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है? अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चों। I'll rub this one first of all. ओके, क्या आपने ये टर्म सुना है? जीरो। ये टर्म सुना है आपने? जीरो। तो इसके साथ अगर मैं वेक्टर जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताए आपको? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है? सर देयर आर टू वेक्टर्स, एक आपका वेक्टर ऐसा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और सेम अमाउंट ऑफ वेक्टर मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया, जिससे क्या होगा सर? जिससे एक दूसरे को वो क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, है ना बच्चों? सो इफ आई कीप लाइक दिस, मैंने अगर ऐसा रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सी, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर one horse is moving in the plus x direction, ठीक है, another horse is there which is moving in the negative x direction, so both are applying 20 horsepower of what? दोनों 20 हॉर्स पावर अप्लाई कर रहे हैं, कहां पे? इस पॉइंट पे। in which direction this point will be going to move? say for example those two horses is held by you, आपने पकड़ा हुआ है दोनों हॉर्सेस को, तो दोनों उतने ताकत से मूव कर रहे हैं। इन विच डायरेक्शन? कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? फट से बताओ यार। मान के चलो ये जो छोटा पॉइंट नीला है इसको मैंने एनलार्ज कर दिया, आई हैव एनलार्ज्ड इट, दैट स्मॉल पॉइंट, तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? हो सकता है कि डायरेक्शन ये डायरेक्शन में जा सकता है, हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। ताकत दोनों पे, दोनों से उस पॉइंट पे कितनी लग रही है? जीरो लग रही है। बट हॉर्स दोनों को आपने पकड़ा हुआ है, आप किधर जा सकते हो? उस डायरेक्शन में जा सकते हो, or else you may can move in this direction, or else you may can move in whichever direction, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। क्या कहते हैं उसको? what we are going to call it as arbitrary direction, ठीक है ना? कोई भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। लेकिन आप नहीं जा सकते, क्यों? बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ओवर दैट पॉइंट, या बट डायरेक्शन किधर भी घूम सकता है अगर थोड़ा सा ज्यादा कम हुआ तो। सो दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर, जिसका डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन होता ही नहीं है। क्लियर? सो इफ दिस इज क्लियर माय डियर किड्स, यहां पे मैं इस क्लास को क्लोज करता हूं, ठीक है?
Fine. Thank you, my dear kids. The time is over. If you felt happy about today's class, you can give big thumbs up at my lecture 1 of motion in a plane. Okay. इसके साथ साथ और एक चैप्टर मैं पैरेलली स्टार्ट करूंगा जो कि वो recorded classes होंगे, not online class, because I have to complete this portion as much as early as possible. तो ग्रेविटेशन चैप्टर भी मैं स्टार्ट करूंगा ऑफलाइन का, तो उसके भी पैरेलली वीडियोस इसी के साथ अपलोड होते रहेंगे. सो गो एंड विजिट टू दैट वीडियोस आल्सो. ठीक है. ओके. अगर टाइम पॉसिबल हुआ तो 2 चैप्टर्स पैरेलल चलेंगे इसके साथ, वरना तो सिंगल तो चलेगा ही चलेगा. इसके साथ ग्रेविटेशन चलेगा. अगर टाइम पॉसिबल हुआ तो ऑसिलेशन या वेव्स वो भी चलेगा. डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी अपलोडेड. ठीक है. चलो बच्चों, चैप्टर 3 नोट्स विल बी सेंट बाय द इवनिंग. थोड़ा सा 7 बजे के बाद मुझे इवनिंग में कोई तो याद करो. ठीक है. ऑफलाइन मींस रिकॉर्डेड वीडियो. आप लोग नहीं रहोगे, मैं बस रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करता रहूंगा. समीर, आपको अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा. ठीक है. कोई भी बच्चा मैक्सिमम डाउट्स पूछिए, सो आई विल मेक वीडियो ओवर दोस. ठीक है. चलो, बाय माय डियर किड्स. जय हिंद.